That was regarding diminishing balance method. We have discussed straight line method. We have discussed annual basis and monthly basis. Both we have already discussed. Now we are moving towards the last topic. Topic is basically the last, but we will move towards past papers. We will solve past papers, obviously. On disposal of an asset. So disposal of an asset का मतलब क्या है? It means sale of an asset. So disposal of an asset means that you are selling an asset after a certain period of time. तो अगर मैं suppose करता हूँ कि मेरा एक asset जो है वो suppose करें कि 10,000 का था, मैंने इसको एक साल use किया, which is obviously 1,000. After 1 year of use, the value of the asset will become 9,000. After again 1 year of use, because I am going for straight line method, the value of the asset is again will decrease by 1,000. This comes 8,000. Again, the value of asset again will decrease by 1,000 more. And after decreasing 1,000 means that depreciation has been already charged for 3 years. I have charged depreciation in the first year 1,000, then in the second year 1,000, then in the third year 1,000. It will become 7,000. Again in the fourth year, the asset has been depreciated by 1,000 more. So it becomes 6,000. Now what happened? That after 4 years of use, the asset has been sold out for 5,000. This asset has been sold out for 5,000. So this is known as that I am going to sustain a loss of 1,000 because the value of asset is currently 6,000 and the asset is sold for 1,000. There is going to be a loss. So this is basically the cost of the asset, and after depreciation, this value is known as book value. Now, what is book value? Book value is cost of the asset, original cost of the asset minus total depreciation. Minus total depreciation. Cost minus total depreciation is basically the book value. So the book value is equal to cost minus total depreciation. Total depreciation means depreciation from the date of purchase. Depreciation from the date of purchase till the date of sale. From the date of purchase till the date of sale. That is the total depreciation from the date of purchase till the date of sale. The book value is cost minus total depreciation. So that is the depreciation from the date of purchase till the date of sale. If I will talk about in this question, the cost of the asset is 10,000 and the total depreciation to date. Total depreciation to date means from the date of purchase till the date of sale, that is 4,000. So the book value will be 6,000. Now this 6,000 will be compared with the sale proceeds of the asset, which is 5,000. So I'm going to sustain a loss of 1,000. That will be loss. So that is book value. And this 5,000 is sale proceeds. So book value is going to be compared with the sale proceeds to find the profit and loss on disposal. Whenever the asset is going to be sold out, we are going to compare the book value of the asset with the sale proceeds of the asset, which will give us the profit or loss on sale of asset. क्या आपको asset sale करने पर profit हो रहा है या loss हो रहा है? अब अगर आप compare करें 10,000 cost के asset को 5,000 के साथ, you may consider it that we are going to sustain a loss of 5,000, which is absolutely wrong. Because 10,000 has been depreciated by 1,000 every year, and after 4 years, the book value has become 6,000.
because after 4 years of use, the asset is 6,000, and then it is compared with the sale proceeds, which is 5,000. And here we can easily find out that there is going to be a loss of 1,000. कि हमें लॉस हुआ है कितने का? 1,000 का, क्योंकि 6,000 को 5,000 से कंपेयर करेंगे तो आपको लॉस होगा 1,000 का. ठीक है जी. तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द टॉपिक डिस्पोजल ऑफ एन एसेट. डिस्पोजल ऑफ एन एसेट मींस सेल ऑफ एन एसेट. ठीक है. When an asset is sold, we have to calculate the book value of that asset. The book value will be compared with the sale proceeds to get profit or loss on sale of asset. Book value कैसे calculate करते हैं? Book value original cost minus total depreciation to date. Total depreciation to date means total depreciation from the date of purchase till the date of sale. While selling an asset, a separate account will be prepared to calculate profit or loss on sale of asset, and that account is called asset disposal account. Yani whenever we are going to sold out an asset, we have to prepare a separate account called asset disposal account, and everything which is related to the disposal will be dealt through disposal account. The following are the entries which are recorded in asset disposal account, जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं. एंड इस केस में मैं एंट्रीज पास करने जा रहा हूं आपके पास. सबसे पहले इसमें एक सेपरेट अकाउंट हम ओपन करते हैं, एक न्यू अकाउंट हम ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट. एसेट डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली एक टेम्पररी अकाउंट है. एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज ए टेम्पररी अकाउंट. ठीक है, टेम्पररी अकाउंट है which we open to calculate profit or loss on sale of asset. किसी भी एसेट को सेल करने पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं. तो टेम्पररी अकाउंट जो हम ओपन करते हैं उसकी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी, बिकॉज व्हाइल सेलिंग एन एसेट, a separate account will be prepared to calculate profit or loss on sale of asset, and that account is called asset disposal account, and following are the entries to record the disposal. तो पहली एंट्री हम पास करते हैं एसेट डिस्पोजल की, वो क्या होती है हमारी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट आपका हो जाता है एसेट अकाउंट. एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं. तो अगर आप अज्यूम करें, इमेजिन करें, ये एंट्री जो पहली एंट्री हमने पास की है जिसमें मैंने एसेट डिस्पोजल अकाउंट को ओपन किया है, which is going to be a new account, हम पास करते हैं with the cost of asset sold. ये एंट्री हम पास करते हैं एसेट की कॉस्ट प्राइस से. हमारी एग्जांपल में जो एसेट में सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000. I will pass the entry with 10,000. Asset disposal account is debited by 10,000 and asset account is going to be credited by 10,000. So the first entry I am going to pass is with the cost of the asset sold, asset disposal account debit and asset account credit. Asset account credit हो रहा है, decrease in asset credit होता है आपका, right? और disposal account हमारा debit हो रहा है, disposal account को हम debit कर देंगे. जो हमारी एग्जांपल है उसमें अगर आप गौर करें तो हमारे एसेट की जो कॉस्ट है, यानी जिस प्राइस पर हमने एसेट परचेज किया है वो 10,000 है, एंड दैट एसेट इज बेसिकली सोल्ड आफ्टर 4 years ऑफ यूज. तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से 4 साल इस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूं तो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 इट बिकम 4,000 टोटल डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट द बुक वैल्यू इज 6,000. Here also it is 6,000, and this 6,000 book value is now going to compare with the sale proceed of the asset sold. जितने का सेल किया आपने 5,000 का, तो आप देखेंगे 6,000 का एसेट 5,000 का सेल हो रहा है तो आपको लॉस हुआ 1,000 का. अगर ज्यादा का बिक जाता, यानी 6,000 का एसेट आपका 7,000 का बिक जाता या 8,000 का बिक जाता तो आपको प्रॉफिट होता कितने का? 2,000 का. तो ये एंट्री, ये है उसकी पूरी कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है. अब अगर हम एंट्री के थ्रू इसको सॉल्व करें या पास करें तो पहली एंट्री हम पास करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड. सेकंड एंट्री जो इसकी पास होती है वो हमारी होती है, एंट्री मैं आपको पास करके दिखा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा कितने से? विद द टोटल डे एंट्री हम पास करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड. द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ
जो एसेट बेचा है उसकी बात हो रही है, एसेट सोल्ड। और ये अमाउंट कितनी है? डेफिनेटली आपका एसेट 4 साल इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर हर साल 1000 की डेप्रिसिएशन हुई है, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो आपकी बनेगी वो डेफिनेटली बनेगी 4000। I will pass the entry 4000 provision for depreciation to asset disposal account. Provision for depreciation डेबिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट मैंने उसकी एंट्री पास कर दी है। ये सेकंड एंट्री हमने पास की है। थर्ड एंट्री हमारी होती है जितने का एसेट आपने बेचा है, कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम एंट्री पास करेंगे, और ये एंट्री हम पास करते हैं विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड, विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड। एसेट बेचा उसकी सेल प्रोसीड्स से, और बेचा हमने कितने का है जी? बिल्कुल, हमने इस एग्जांपल में बेचा है 5000 का। ये एंट्रीज पास होती हैं आपकी डिस्पोजल ऑफ एन एसेट के केस में। पहली एंट्री हम पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, दूसरी एंट्री हम पास करते हैं विद द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट सोल्ड, सॉरी, विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। और वो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा लायबिलिटी अकाउंट होता है अमल, तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एसेट आपने बेचा है उस पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे, तो वो डेबिट हो जाएगा। और कहाँ फेंक देंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। जिस तरह हमने एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट से निकाल दिया था, जिसकी वजह से एसेट डिक्रीज हो रहा है, तभी तो क्रेडिट हो रहा है, और फेंक दिया था डिस्पोजल अकाउंट में, इसी तरह इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे और फेंक देंगे डिस्पोजल अकाउंट में विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड। थर्ड एंट्री करते हैं कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट विद द सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट सोल्ड। जितने का एसेट आपने क्या किया है? सेल किया है, उससे ये एंट्री पास होती है कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम अकाउंट बनाते हैं किसका? एसेट डिस्पोजल अकाउंट का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए मैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट का अकाउंट आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूं कि कैसे हम इसका अकाउंट जो है वो बनाते हैं, which is going to be a new account because we have never prepared asset disposal account. Whenever an asset is going to be sold out, we are supposed to prepare a separate account called asset disposal account, and everything which is related to the disposal of an asset will now be dealt through disposal account. यानी कि हम एसेट को क्रेडिट करेंगे डिस्पोजल से, फिर डेबिट करेंगे डिस्पोजल के नाम से ही, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री है आपके सामने। पहली एंट्री एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट, एसेट को कॉस्ट प्राइस से निकाल देंगे एसेट अकाउंट से और डिस्पोजल में फेंक देंगे। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो एसेट बेचा उस पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर जो एसेट में सेल किया है जितने का, उसकी एंट्री पास की मैंने कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। देखिए एसेट डिस्पोजल से रिलेटेड हमारे पास कितनी चीजें आती हैं। एक होती है उसकी कॉस्ट, इस केस में 10,000 है। एक होती है उस पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन, बिकॉज़ यू नीड टू डिफरेंशिएट दीज थिंग्स, यू शुड डिफरेंशिएट दीज थिंग्स, व्हिच इज 4000। एक होती है उसकी सेल प्रोसीड्स, व्हिच इज 5000, और एक होती है उसकी बुक वैल्यू। टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, which is 6000, and then there is going to be a profit or loss on the asset sold, जो कि हमारा कितना निकला है? 1000 का लॉस था हमारा। ये यानी there are 5 different things which are related to the asset disposal only। एक उसकी कॉस्ट है, इस पर होने वाली टोटल डेप्रिसिएशन है, उसकी बुक वैल्यू है, उसकी सेल प्रोसीड है, और फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। लेट्स प्रिपेयर द एसेट डिस्पोजल अकाउंट फर्स्ट। इसको डॉलर के साइन से मैं लिखता हूं। देखिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है कितने से? 10,000 से डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? एसेट की वजह से। तो यहाँ पे एसेट का नाम आ जाएगा। अच्छा, वो एसेट मशीनरी भी हो सकता है, वो एसेट मोटर व्हीकल भी हो सकता है, कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। सेकंड एंट्री मैंने पास की है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है कितने से? 4000 से। इसकी वजह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से।
ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंट्री कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट हम पास करेंगे और क्या आ जाएगी 5000 से, ठीक है जी। और अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आपको लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम इस सूरत में देखें तो आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आपको लॉस होगा, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ डेबिट साइड बड़ी है 10,000 माइनस 9,000, सो द बैलेंसिंग फिगर इज 1,000 which is going to be written with the name income statement। हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्लोज करते हैं, एसेट लायबिलिटी के नाम से, एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन के नाम से क्लोज होते हैं। तो ऐसे डिस्पोजल अकाउंट में अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपको लॉस होगा, और वो लॉस हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 1,000 का हमारा लॉस हो गया, और ये नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होगा। उसकी एंट्री हम पास कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद। अकाउंट बनाने के बाद एंट्री क्या हमारी की हो रही है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है 1,000 से, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने से, 1,000 से। ये फोर्थ एंट्री है इसकी जो अकाउंट बनाने के बाद आपने पास करनी है। इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रहा है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,000 से। तो आप देखें डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,000 से, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूं, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। अगर आप इस एंट्री को डिस्पोजल अकाउंट में दोबारा बिठाते हैं, इफ यू पोस्ट द एंट्री इन द डिस्पोजल अकाउंट अगेन आफ्टर पासिंग द एंट्रीज, you will be able to know that you have posted the entry on the right side because disposal account is credited by 1,000 with reference to the income statement. This is how we have gone for the working and calculation of disposal of an asset, कि हम उसको कैसे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, डिस्पोजल ऑफ एन एसेट को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो इस केस में आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्पोजल के साथ क्वेश्चन भी मौजूद होगा, मतलब डेप्रिसिएशन भी साथ चलेगी और डिस्पोजल उसके अलावा होगा। मैंने भी सिर्फ एग्जांपल जो सॉल्व करवाई है, पहले मैंने डिस्पोजल की कैलकुलेशन आपको बताई है जिसका बेसिकली आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है डिस्पोजल की, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग में हमने एंट्रीज और टी अकाउंट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो एंट्रीज 4 होती हैं इसकी, मैंने बताई है आपको। डिस्पोजल अकाउंट एक नया अकाउंट बनता है, whenever an asset is going to be sold out we have to prepare a separate account called asset disposal account, and that will be prepared, and asset disposal account की आपको हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट के जरिए फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताएं इसमें कोई यहाँ तक मसला है तो मुझे बताएं। इशफाक समझ आ गई है आपको? एनी प्रॉब्लम? अमल एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। हाँ जी सर, आगे समझ। जी, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क यू कैन। सर एक दफा जरा ये जो आपने एंट्रीज की हैं 4, इनके पीछे लॉजिक तो बता दें, जरा वो एक्सप्लेन कर दें। जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्पोजल अकाउंट जो है इसकी नेचर होती है टेम्पोररी अकाउंट की। टेम्पोररी अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो एक खास मकसद के लिए ओपन किया जाता है। आगे भी पढ़ेंगे आप अकाउंटिंग में, ऐसे अकाउंट्स आएंगे आगे भी, जो एक खास मकसद के लिए ओपन किया जाता है। उसके बाद हम उस मकसद के अलावा उस अकाउंट को आगे कहीं यूज नहीं करते, वो खत्म हो जाता है। तो डिस्पोजल ऑफ एन एसेट के अंदर हमने एक अकाउंट ओपन करना है जिसे हम कहते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और उसकी जो ओपनिंग एंट्री होती है वो विद द कॉस्ट प्राइस से हम पास करते हैं, एसेट की कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि मैंने पास की है एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और ये एंट्री आप पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। एसेट जा रहा है आपके पास से, कहाँ जा रहा है? बेसिकली आप एसेट जो बेचा है उसको एसेट अकाउंट से निकाल देंगे। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज एनी फर्दर विद यू, इट इज नॉट विद यू एनी मोर। सो आप एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे अकाउंट से और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसको। इसी तरह उसी एसेट पर होने वाली डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड और डिस्पोजल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, एंड डिस्पोजल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। जब आप उसमें से कोई चीज माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा।
और ये एंट्री करते हैं विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड. सो इन दिस एग्जांपल total depreciation is, that is 4 years, and 1000 is the depreciation for every year, so it becomes 4000 in total. उससे हम एंट्री पास करेंगे. थर्ड एंट्री पास करते हैं सेल प्रोसीड से, यानी जितने का एसेट सेल हुआ है वो 5000 उसकी अमाउंट है, और एंट्री है कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. कैश आपका पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम उसकी एंट्रीज को सॉल्व इस तरीके से करते हैं. और फिर हम बनाते हैं डिस्पोजल अकाउंट. डिस्पोजल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे. पहली एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से एसेट की वजह से. सेकंड एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4,000 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से. थर्ड एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कैश से 5,000 की वजह से. और इसका फिर हम अकाउंट जब बैलेंस करेंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से करेंगे. क्यों? क्योंकि इस अकाउंट की नेचर इनकम स्टेटमेंट की है. दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. If debit side is heavier than credit side, we are going to have a loss, which is written with the name income statement on the credit side. If credit side is heavier than debit side, then we are going to have a profit, which is written with the name income statement on the debit side. फिर डेबिट पे लिखेंगे, और अकाउंट बनाने के बाद इसकी एंट्री हम पास करते हैं. एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. जो लास्ट एंट्री है ये कभी गलत नहीं हो सकती. लास्ट एंट्री कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा 1000 से इनकम स्टेटमेंट की वजह से. अब देखते हैं आगे. मेरे ख्याल यहां तक आपको क्लियर होगी बात. इसका कोई सवाल या क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन मैं खुद से अपना एक लिख लेते हैं हम कि ए एंड कंपनी purchased a machine तो ए एंड कंपनी परचेज ए मशीन फॉर 20,000 on 1st January 2020. Another machinery is purchased for 10,000 1st July 2021. आगे देखते हैं जी. On 30th June 2022, machinery which is purchased machinery which is purchased on 1st January 2020 was sold for 10,000, right? कितने की बिक गई है? Machinery is depreciated under straight line method at the rate of 20% on month-to-month basis.
ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द provision for depreciation account and disposal account आपने बनाना है। तीनों सालों के लिए हम इस सवाल क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करेंगे। डिस्पोजल भी हो रहा है और हम मशीनरी जो है वो परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे जी, जी बिल्कुल हम इसका बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा कैसे बनेगा, आपको पता है कि मशीनरी अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड, इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। हमेशा मशीनरी अकाउंट जो हम कॉस्ट प्राइस से ही बनाते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले डॉलर के साइन आ जाएंगे। आपने 2020 में मशीन परचेज की है, परचेज की आपने कितने की, 20,000 की। अब खरीदी है आपने 1/1 को, यानी 1/1 को you will write the machine on the debit side with the name bank. Now I am going to go for the total of this. So because no other machinery is purchased in this year other than this, वो अगले साल खरीदी है मैंने, जिसकी बात आप कर रहे हैं 10,000 की। 31st 12 को आपके पास आ जाएगा carried down with the same amount 20,000 और टोटल भी आपका डेफिनेटली आ जाएगा 20,000 और इधर भी आपका टोटल आ जाएगा 20,000। Now this 20,000 will become the brought down of the next year, 2021। आपके पास इतनी जो मशीनरी है वो अवेलेबल है या पड़ी हुई है, जिसकी अमाउंट है 20,000 on 1/1। On the same year, in the same year, we have purchased another asset on 1st July, the cost of 10,000। You have to remember this कि हम जो अपना अकाउंट बना रहे हैं वो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं और डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है और स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा सवाल है और मंथ टू मंथ बेसिस से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका 30,000 आ जाएगा जी। इधर भी आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 31st 12 को 31 कैरी डाउन 30,000 एंड इधर भी आप लिख लेंगे 30,000। दिस विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर in 2022, 30,000 again on 1/1, यानी 1/1 को हम लिख लेंगे, ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 30,000। अब 2022 का भी आपने बनाना है, क्यों सर? Because on 30th June 2022, machine which is purchased on 1st January was sold for 10,000। हमने वो एक मशीन बेच दी है, जो मशीन हम बेच देंगे उसको हमने एसेट अकाउंट से बेटा निकाल देना है और फेंक देना है किसमें, डिस्पोजल अकाउंट में। Why? Because it is no more with you. The machine is no more with you, so you have to delete it from the T account of asset because now it is not with you. So I will write over here on 36 it's going to be a disposal। कॉस्ट प्राइस से क्रेडिट करेंगे हम, पहले खरीदी थी आपने वो क्रेडिट हो जाएगी आपके 20,000 वाली। 31/12 को आपका यहाँ पे आ जाएगा कैरी डाउन which is 10,000, क्योंकि 10,000 वाली तो अभी भी आपके पास है और आप इसको यूज भी कर रहे हैं, which will become the brought down of the next year with 10,000। Now I am going to prepare। देखें एक बच्चा ये सवाल करता है कि सर जो एसेट आपने 20,000 वाला सेल किया है आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं डिस्पोजल से 20,000 से, जबकि सर आफ्टर 3 years इट्स वैल्यू नीड्स टू बी डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द एसेट। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे 20,000 ही डेबिट किया है, तो जब मैं बेचूंगा तो 20,000 से ही क्रेडिट करूंगा, डिस्पोजल 20,000 से ही क्रेडिट करूंगा, जितने का आया उतने का गया, क्योंकि एसेट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। हम कॉस्ट प्राइस से ही बनाते हैं इसको।
इवन और इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो उसमें रिकॉर्ड होगी, डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी सेपरेटली। इसमें सिर्फ एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस से बनता है, इसमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है, और डेप्रिसिएशन को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं अलग अकाउंट में। इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं। तो इसकी वर्किंग हम करते हैं 2020 में। सबसे पहले मेरे पास जो एसेट मंथली बेसिस में स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20,000 का एसेट था। डेप्रिसिएशन रेट मेरा 20% है। इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि मैंने इसको यूज किया फुल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। एंट्री इज गोइंग टू बी द रिमेन द सेम। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, कब? 31/12 को एट द एंड ऑफ द ईयर विद द नेम इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियसली। और यहां पे मैं 2020 लिख दूंगा। इधर आपका ये 31/12 को कैरी डाउन आ जाएगा। इट इज 20,000, ओ सॉरी 20,000 कह रहा हूँ, 4,000। इसका मैं टोटल कर लूंगा। मेरे पास टोटल जो डेप्रिसिएशन हुई है 2020 में वो कितनी है? 4,000। इधर भी आ जाएगी 4,000। नेक्स्ट ईयर में ये बन जाएगी ब्रॉड डाउन 4,000 के। आपके एसेट अब तक कितने डेप्रिशिएट हो चुके हैं 2021 में? ऑन 1/1 दोबारा इस पर डेप्रिसिएशन होनी है कब? 31/12 को एट द एंड ऑफ द ईयर आई हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन विच विल बी रिटर्न विद द नेम इनकम स्टेटमेंट, और अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो देखते हैं 2021 में हमारी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 2021 में 20,000 वाले पर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगेन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पे ही निकालूंगा मैं हमेशा, वो आपकी 4,000 ही आ जाएगी। और एक एसेट मैंने और परचेज किया था 10,000 का, इस पे भी आएगी 20%, लेकिन इस पर आएगी इंटू 6/12 क्योंकि वो मैंने 1 जुलाई को परचेज किया था। उस पर 6 माह की डेप्रिसिएशन मैं निकालूंगा जो कि मेरी आ जाएगी 1,000। टोटल डेप्रिसिएशन मेरी आ जाएगी 2021 की 5,000। और इसकी मदद से मैं इसका डेफिनेटली टोटल कर लूंगा। मेरे पास 31/12 को जो डेप्रिसिएशन की फिगर आ जाएगी कैरी डाउन के अंदर, वो आ जाएगी 9,000। टोटल में भी आपका आ जाएगा जी 9,000, और डेफिनेटली इधर भी आप लिख लेंगे 9,000। दिस 9,000 विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विच शोज कि आपके एसेट अब तक इतने डेप्रिशिएट हो चुके हैं, यानी आपके जो भी एसेट आपके पास थे वो अब तक 9,000 से डेप्रिशिएट हो चुके हैं। ये बेसिकली ये बात बताती है। अब इस साल भी डेप्रिसिएशन होनी है, जाहिर बात है। 31/12 को दोबारा इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो हम देखते हैं कि 2022 में डेप्रिसिएशन हमारी कितनी होगी। देखिए 20,000 वाला एसेट जो है इस पर दोबारा डेप्रिसिएशन होगी 20%, बट ऑलवेज रिमेंबर अब डेप्रिसिएशन होगी इस पर 6/12, 6 माह की। क्यों सर? क्योंकि बेटा आपने इसको इस्तेमाल किया 30 जून तक, 36 को आपने बेच दिया इसको। तो ये एसेट आपका 2022 में सिर्फ 6 माह इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसके बाद ये आपके पास था ही नहीं, सेल जो कर दिया था। तो अब आप उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और 10,000 वाला एसेट को आपने 2022 में फुल ईयर यूज किया है, तो इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 4,000 इस साल की। दोबारा देखिए, सोचें इस बात को कि जो एसेट आप सेल कर रहे हैं उसको आपने सेल कर दिया है 30 जून को। इसका मतलब है 1 जनवरी से लेके 30 जून तक तो आपने इसको यूज किया है, उसके बाद आपने इसको यूज नहीं किया, उसके बाद आपने सेल कर दिया था। तो आप उस पर सिर्फ 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20,000 पे 20% इंटू 6/12, वो आपके पास आ जाएगी कितनी? तो 2,000। और 10,000 वाला एसेट जो है वो आपने पूरे साल यूज किया है। अब पहले 6 माह यूज किया था किस में, अब तो फुल ईयर यूज किया है ना, उस पर पूरे साल की 20% लेंगे, वो आ जाएगी 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 4,000, जिसकी मैंने एंट्री पास कर दी, इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब सेकंड एंट्री हम पास करेंगे जो डिस्पोजल की एंट्री है। आपने जो एसेट बेचा है उस पर होने वाली डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट से भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे डिस्पोजल की एंट्रीज में पास करने जा रहा हूं, मैंने पीछे आपको समझाई भी है।
डिस्पोजल की पहली एंट्री हम पास करते हैं वो क्या होती है जी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री हम पास करते हैं विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000, और क्रेडिट भी हो जाएगा आपका 20,000। अब देखिए मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। जब उसका अकाउंट बनाऊंगा तो उसके अकाउंट में मैं उसकी पोस्टिंग भी करूंगा। नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसकी अमाउंट लिखने के लिए मुझे ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये अमाउंट कितनी है जी, अब देखनी है आपने कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई उस एसेट पर जो आपने जो है वो सेल की है। देखें जो एसेट आपने बेचा है उस पर पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है जो बेचा है, 4,000। सेकेंड ईयर कितनी हुई है, 4,000 जो बेचा है। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल 10,000। तो 4,000 4,000 2,000 कितनी बन गई, 10,000। ठीक है जी, तो ये डेप्रिसिएशन पर कितनी हुई है जी, 10,000। इधर भी आ जाएगी 10,000। अब एंट्री पास कर देंगे कैश टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसकी जो एंट्री है वो मैं पास कर रहा हूं, लेकिन इसकी अमाउंट मैं चेंज करूंगा ना, वो अमाउंट सेम आ जाएगी आपकी। तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि हम इसको सेल कर रहे हैं 12,000 का, उसको भी 12,000 कर देता हूं ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो सके। तो मैं जो ये अमाउंट है कि आपने इसको बेचा है इसको मैं 12,000 कर देता हूं, वरना प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा, ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस आ जाए एग्जाम्पल के हिसाब से। इसको मैं 12,000 कर देता हूँ। ठीक है जी, बस अब हमने डिस्पोजल अकाउंट जो है वो बनाना है, ऐसा डिस्पोजल अकाउंट, और उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो ऐसा डिस्पोजल वो बेसिकली आपका बनेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो आपने बनाना है, और एंट्रीज के थ्रू ही बनेगा, जारी बात है वो हम बनाएंगे। लेकिन याद रखिएगा दूसरी एंट्री की मैंने पोस्टिंग नहीं की अभी। दूसरी एंट्री में क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है कितने से, यहाँ पर 10,000 से, इसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। तो ये कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 3,000, और ये ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा आपका 3,000, क्योंकि जो एसेट बेचा है आपने उसकी टोटल डेप्रिसिएशन को आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे और कहाँ फेंक देंगे, डिस्पोजल अकाउंट में आपने फेंक दिया। अब यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट अगर हम बनाए, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है मशीनरी की वजह से, 3,000 से। ये देखे ना, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा 20,000 से, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। फिर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, कितने से, 10,000 से। फिर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, कितने से, 12,000 से। तो आप देखें कि आपकी कौन साइड बड़ी है, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 22,000 का आपका एसेट टोटल। क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा। क्रेडिट साइड अगर आप देखें तो बड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वो किस नाम से लिखेंगे आप, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, आप डेबिट साइड पर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से। ऐसा डिस्पोजल अकाउंट की नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, तो इसे आप क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट के नाम से। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी 22,000 माइनस 20,000 तो 2,000 आपका प्रॉफिट आएगा, लेकिन लिखेंगे डेबिट साइड पर इनकम स्टेटमेंट के नाम से। अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो आपका लॉस आएगा, जिसको आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो आपको 2,000 का इस सवाल में प्रॉफिट हो रहा है। वैसे भी देख लें 20,000 का एसेट था, 10,000 की डेप्रिसिएशन हुई तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, यानी अब एसेट कितने का पड़ा हुआ है आपके पास, 10,000 का। बुक वैल्यू 10,000 है, बेचा कितने का, 12,000 का, 2,000 का प्रॉफिट ही हुआ है ना आपको, 2,000 ज्यादा कीमत पर सेल हो गया आपका एसेट। ये 4 एंट्रीज इसकी पोस्टिंग करनी है आपने। और फिर आप डिस्पोजल अकाउंट भी, डेप्रिसिएशन के साथ डिस्पोजल अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन के साथ रिलेट होके आएगा, इकट्ठा आएगा यानी। ठीक है जी, पहले साल डेप्रिसिएशन आपकी 4,000 थी, सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी 5,000 थी, ठीक है जी, और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी 4,000 थी, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो पहली एंट्री